So good morning to all of you. Now we can say it is the good afternoon, just past 12 p.m. now. So it is good afternoon to all of you. Myself, Professor Navid Akhtar Mirza from Maulana Mukhtar Ahmad Nadwi Technical Campus. So up till now, in your subject, we have seen the definitions of mechanics and different types of mechanics on rigid body, deformable body, fluid mechanics. But your subject it is deal with the rigid body only, and also we have seen the static and dynamic, and we have to see, study in your this subject applied mechanics on the rigid body, and that is statics. Okay, so what is static and dynamic? We also seen earlier kinetics and kinematics, their differences, also relevance of the applied mechanics subject. Also, we have seen the history about the mechanics, how it is evolved and differentiate between the static and dynamic. Also, we have seen the Newton's three laws. It is very important for to learn the classical mechanics, and then we have seen different terminology, that is space, length, time, particle, body, center of mass, and definitions of rigid body, elastic body. Also, we've seen the scalar and vector quantities, what are these, and mass and weight. And in previous lecture, we have seen the uh, weight fundamentals, unit derived units, that is the systems of units of measurement, and difference between mass and weight also we have seen. So fundamental units are only three, they are mass, length, and time. Others units, that is force, weight, area, volume, velocity, acceleration, density, work energy, momentum, temperature and power, etc. They are the derived quantities. Then we have seen the difference between the mass and the weight, and also we have seen the gravitational acceleration. Also some parts of videos also we have seen in the previous classes. Now today the lecture outcome will be the force and effect of force and characteristics of forces. Also we will see the Bose notations, space diagram and vector diagram, and then if time permits we will see the principle of transmissibility and system of forces if time permits. So what is the force? You see, force is an external agency, either is push or pulls, which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of body upon which it acts. So we will see the definition also, uh, the animation video you can see, and you will understand what is the force.
फोर्स क्या है आप देखिए, फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट, या तो ढकेलना या तो खींचना, इट इज द फोर्स। आप देखिए यहाँ पर दो पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट को खींच रहा है और एक ऑब्जेक्ट को ढकेल रहा है और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज नथिंग बट फोर्स। तो फोर्स, हम कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो मूव होते हैं। तो फोर्स, ये ये बॉल पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? आपका आंसर क्या है? नो। इस पर कोई फोर्स है? हाँ, कौन से फोर्स एक्ट करें? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जो कि उसको अपनी जगह पर रेस्ट पोजीशन में है, और नॉर्मल फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दे आर बैलेंस, दैट्स वाई द बॉल का जो पोजीशन है इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। तो नेट फोर्स, उसके ऊपर जो एक्ट हो रहा है वो नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से it is equal and opposite, that's why it is not moving the ball and there is no action. The net force is zero. है ना? जब ऑब्जेक्ट को अगर हमको मूव करना है तो उसके ऊपर अगर ज़ीरो फोर्स है तो वो मूव होगा क्या? नहीं, वो अपनी स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। लेकिन नेट फोर्स अगर इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है तो ऑब्जेक्ट मूव होगा, है ना? बिकॉज इट इज़ नॉट ज़ीरो, है ना? अगर हम बॉल बॉल को किक करते हैं तो क्या होता है? बॉल रोल होता है, स्लाइड होता है, मूव होता है ना, अपनी जगह से, और उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। क्यों उसकी पोजीशन चेंज हुई? क्योंकि हमने उसको किक किया, उस पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया, है ना? बॉल कुछ डिस्टेंस तक गया और उसके बाद रुक गया, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और और कुछ दूर जाकर बॉल रुक जाता है, जबकि उसके अनदर साइड से कोई फोर्स नहीं था। बॉल को कौन, किस, जब हमने उनको फोर्स अप्लाई किया, पुश, ढकेला, किक किया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो सरफेस का, वो उसको बॉल को रोक दिया। हाँ, अब समझिए कि आपका जो सरफेस है वो फ्रिक्शनल सरफेस है और बॉल मूव हो रहा है। अब इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल और नॉर्मल फोर्स ये इक्वल एंड अपोजिट है। अब ये कंटिन्यू मूव होगा, क्योंकि आप क्या कंसिडर कर रहे हैं कि तो ना एयर है और जो सरफेस है वो फ्रिक्शनल सरफेस है, तो फोर्स बैलेंस है और बॉल कंटिन्यू मूव होता रहेगा, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है एंड नेट फोर्स ज़ीरो है।
तो क्या क्या सीखे हम लोगों ने पहले, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इट कंटिन्यू रिमेन एट द रेस्ट, और द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब भी नेट फोर्स अगर जीरो है कंटिन्यू रिमेन टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। अगर अगर हम इसको और अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो द वेलोसिटी विल चेंज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने के बाद। तो ये, और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये मूव करते रहेगा, है ना। लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स को लगाते हैं तो क्या, तो तब तक वो मूव होते रहेगा यूनिफॉर्म मोशन में। इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी एट रेस्ट है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स है, और उसकी नेट वैल्यू, नेट फोर्स की जो वैल्यू है ज़ीरो है, इसके लिए वो अपनी जगह पर है, स्टेशनरी है, रेस्ट है, मूव नहीं हो रहा है। स्टेशनरी यानी रुका हुआ है, कहीं मूव नहीं हो रहा। लेकिन एक बॉल है जो कंटिन्यूस एक स्पीड में फ्लो रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो मूव हो रहा है, उस पर भी ग्रेविटेशनल नॉर्मल फोर्स है। लेकिन वो जो वो मूव हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है, या कोई ऐसा मीडियम नहीं है जैसे कि एयर है और दूसरा मीडियम नहीं है जो उसको रेजिस्ट करके और उसके मोशन को रोके या कम करे। तो दैट इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म मोशन, अगर देयर इज नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और फोर्स टू स्टॉप द बॉल। तो फोर्स का है, इट इज अ पुश एंड pull of an object resulting from its interaction with the another object, then only the force will come। एक ही ऑब्जेक्ट को हम नहीं बोल सकते जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड लोड या फोर्स नहीं रहेगा। है ना, किक हमने बॉल को मारा तो बॉल ऑल्सो गिविंग दम फोर्स टू आवर लेग्स, लेकिन हमारा लेग का ज़्यादा है, उसकी वजह से बॉल क्या है अपनी पोजीशन चेंज कर दे रहा है। तो दैट इज द force। Similarly, there are different types and system of forces are there, and we can see that also. Force is generally uh, measured in Newton or kilonewton, or we can see the unit of force is the Newton or kilonewton. So force represents the action of one body on another, characterized by its magnitude, direction of its action or motion, and its points of application। तो हमने पहले भी बताया कि फोर्स क्या है हमारी, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारा क्या है, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी, तो यू कैन सी हियर the unit force, if you apply 1 kg of mass to 1 newton, uh, 1 meter per second of acceleration, then it will
produce a 1 Newton force, you can see. Okay, and this is on the surface, you can see it is going. So 1 unit Newton force is the force which when act on a body of mass 1 kg produces 1 meter per second square acceleration. So what is the force? What is the unit force? If 1 Newton force is required to move 1 kg of mass and that produces 1 sorry that is produces 1 meter per second of acceleration, it is called as your unit force. Now we'll see the effects of forces. तो इट में चेंजेस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस आर दैट कि अगर बॉडी एज रेस्ट है, हम उसको किक करते हैं या पुश करते हैं तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है और इट में एक्सीलरेट और रिटार्ड द मोशन ऑफ बॉडी. जैसे एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हमने और फोर्स अप्लाई कर दिया तो और तेज मूव होने लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सीलरेटिंग. इसी तरह रिटार्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और उस पर हम थोड़ा सा हाथ लगा दें तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, तो दैट इज रिटार्डेशन ऑफ द मोशन ऑफ योर बॉडी. तो ये फोर्स के इफेक्ट हैं. इट में टर्न और रोटेट द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एनी डायरेक्शन में हम रोटेट कर सकते हैं. It is also the effect of your force. It may deform the body on which it acts. अगर फ्लेक्सिबल बॉडी है और हम उसको प्रेस करते हैं तो वो उसको डिफॉर्म भी करते हैं. इसका एग्जांपल हमने पहले भी देखा था स्टार्ट में, जो हमारा ये बॉल का फोटोग्राफ मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के टाइम में. तो यू कैन सी दिस वन, है ना. अगर ऑब्जेक्ट आप देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट आपका फ्लेक्सिबल है तो ये डिस्टॉर्ट होगा, डिफॉर्म होगा. और हम अगर रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो मूव होगा. कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, हम उसको स्टॉप करते हैं, रोकते हैं तो वो स्टॉप हो जाएगा. इसी तरह एक स्पीड में आपका बॉल मूव हो रहा है, आप उसको और थोड़ा सा ऊपर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट इज़ ऑल्सो स्पीड अप एंड एक्सीलरेट इट्स वेलोसिटी. इसी तरह अगर कोई ज़्यादा स्पीड से बॉल आपका मूव हो रहा है, आप उस पर टच कर देते हैं यानी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, स्लो डाउन. इसको रिटार्डेशन बोलते हैं. और इसी तरह डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. कोई मूविंग बॉल है और हम उसको पुश करते हैं, जैसे कि बैट से हम अगर टच करते हैं बॉलिंग करने के बॉलर के बॉल को, तो वो डायरेक्शन चेंज होता है और दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है. तो दैट इज़ द forces. You can say that that is the effects of forces. That is the effect of your forces. So force is a vector quantity. Why force is a vector quantity? Force is a vector quantity because it has both the magnitude and direction. So magnitude and direction both are there. That's why it is called as a force and vector quantity. The effect of force हम लोग देखें. We will see one video also on this. We will see the video.
what are the effects of forces. फोर्स के कितने टाइप्स है? दो टाइप, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. Contact forces, force that result from the interaction of two objects in contact with each other. है ना? हमने फोर्स अप्लाई किया एंड देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन आवर लेग एंड द बॉल, so that is the contact force. है ना? इसी तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी सरफेस के कांटेक्ट से है, तो दैट इज आल्सो अ कांटेक्ट फोर्स. लेकिन लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दैट इज नॉट, और एयर रेजिस्टेंस जो है वो ऑल्सो भी कॉन्टेक्ट में. दीज ऑल आर द कॉन्टेक्ट फोर्सेस दैट इज अप्लाइड फोर्स. हमारे लेग के कॉन्टेक्ट से पुश हुआ बॉल और मूव हुआ. एयर रेजिस्टेंस है, एयर मीडियम है, it will also resisting the force to retard the ball. Friction force surface का है, that is also the contact force, that will also retard the uh, movement of your ball. And there is a normal force, it is also the contact force on the ball. लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर इसके अपोजिट में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. है ना? बॉल अगर हम एयर में अगर हम छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ गिरता है. क्यों गिरता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कसी से शक्ल की वजह से ज़मीन की, और इसकी वजह से वो ज़मीन पर आता है. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो बॉडी फ्लोट होती. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसी तरह इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है, मैग्नेटिक जो फोर्स है, दैट इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. है ना? पहला आपका इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या रुका हुआ ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट पर, और हम उसको किक मारते हैं, तो फोर्स क्या करता है, उसको रेस्ट के को मोशन में कन्वर्ट करता है. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक और इफेक्ट ऑफ योर फोर्स. दूसरा क्या, क्या इफेक्ट हो सकता है ना? अगर एक वेलोसिटी से आपका बॉल मूव हो रहा है, और फिर हम और स्पीड से उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ बढ़ जाती है. इसका मतलब इफेक्ट क्या है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो फोर्स का इफेक्ट क्या है, इट ऑल्सो चेंजेस द वेलोसिटी. है ना?
और ऐसा फोर्स कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, हम उसके दरमियान में आ जाए मूविंग ऑब्जेक्ट और उसको रोक दें, तो यानी हम लोग ने उसको, उसका जो मोशन है, जो मूव हो रहा है, उसको रोक दिया। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो रनिंग कंडीशन में है उसको हमने स्टॉप कर दिया। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स तीसरा क्या है कि कोई मोशन में है तो हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ इफेक्ट क्या हो सकता है, आप देखिए यहाँ पर, है ना, फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है। ये फोर्स का इफेक्ट है कि अगर एक स्पीड में आपका बॉल फ्लो हो रहा है और फिर हम उसको जस्ट टच कर देते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट दूसरे डायरेक्शन में मूव होने लगता है, जिस तरह के हमारे सर्किट है। ओके, so this is the effects of forces we have seen in this video। तो क्या क्या है, जो रेस्ट में बॉडी है उसको मोशन में कन्वर्ट कर देगा, कोई एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है उस पर एडिशनल फोर्स लगा है तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी। अगर वो मूव हो रहा है और हम उसको रोक दें तो मोशन को रोक देना, इट इज़ ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स ने क्या किया, उसको एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दिया। एंड अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसको जस्ट हम टच कर देते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन भी चेंज करता है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट फ्लेक्सिबल है तो फोर्स क्या करेगा, उसका शेप भी चेंज करेगा। आप देखिए बॉल को आप दबाते हैं, अगर अगर वो फ्लेक्सिबल है, शेप चेंज होता है उसका। दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस। ओके, so these are the effect of forces। Now we will see uh, the these are the some idealization if you are doing or solving the problem of mechanics। So in third lecture inshallah we will see all these things, sorry, third chapter, and now we will go for the you can see here कि फोर्स का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेशन होना है ना, अदरवाइज इट इज नॉट। यहाँ पर भी देखिए कि ये रोप से ये ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है तो फोर्स है ना। दो ऑब्जेक्ट है, एट इज इन अ पेयर, फोर्स आर ऑलवेज इन द पेयर। यू कैन सी हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आप देखेंगे कि यहाँ पर यू कैन सी हियर द न्यूटन थर्ड लॉ। ये ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है इस डायरेक्शन में और दूसरा ऑब्जेक्ट का फोर्स उसके अपोजिट, सेम अपोजिट डायरेक्शन। तो दैट इज, यू कैन सी हियर F12 and F21। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन equal and opposite reaction, that is the Newton's third law। so that is, you can denote like that। Okay, you can see here the both objects are equal and opposite, the minus sign shows the opposite direction of the same force। The force magnitude will not change, only di direction will change and on the object। Now we see the force interaction। So interaction can be between system in direct contact or those which are physical separate। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो व्हील है, ये व्हील इस डायरेक्ट कांटेक्ट है आपके रेल से, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि व्हील का जो प्रेशर है वो आपके उस पर पड़ता है, रेल पर,
और rail exert opposite pressure on your wheel. So likewise, it is also the characteristic of force. Their force exists in the pair and the concept of your force. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं रेल, अब ये रेल पर हमारा ये फोर्स है जो कि किसकी वजह से है, किसकी वजह से है फोर्स, ये हमारे व्हील की वजह से ये फोर्स। अब ये फोर्स को, ये जो फोर्स है इसको इसको जो रेल का रिएक्शन है ये होल्ड किए हुए है, अदरवाइज ये रेल का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो इस दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी इज प्रोड्यूस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर ना ट्रांसलेशन रोटेशन हो, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज the opposite force is there on the rail or reaction or supporting surface is there, otherwise the rail will go down. Similarly आप देखेंगे कि एक एरोप्लेन आपका जो है वो अराउंड द अर्थ मूव होता है एंड इट मेंटेनिंग द हाइट एट सम लेवल। अब यहाँ पर जो एयर है दैट इज़ द रेजिस्टेंस, बट इट इज़ वेरी लेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी, इसका इफेक्ट भी इतना कम है और इट इज ऑन टू हाई। ओके, तो इस तरह द फोर्सेस आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट, यहाँ पर एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, रेल और व्हील। इसी तरह these are the four characteristic of forces. Magnitude, it can be noted as 10 kgf or 100 newton. For example, the magnitude of force are there and that can be any value. It may be 10, it may be 25, it may be 50. That is the 25 kilonewton or newton, 100 newton. That is nothing but the force magnitude. And point of applications are there. यानी कि अगर ये बॉल है और मैं यहाँ पर किक करता हूँ तो that is the point contact being, that is the point of application on the body. That is, it indicates that the point on the body on which the force acts. Similarly, the line of action. अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं फोर्स अप्लाई यहाँ कर रहा हूँ तो दिस वन इज द लाइन ऑफ एक्शन। इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पर पुल करूँ तो दैट इज ऑल्सो द सेम इफेक्ट एट द सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो एरो हेड it denote the line representing the direction. Similarly, direction, it is represented by a coordinate or a coordinate system. तो यहाँ पर आप देखिए ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन है। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऑब्जेक्ट से नहीं होगा। इट में चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर मूव हो रहा है तो उसको डायरेक्शन देना, उधर दूसरे डायरेक्शन में मूव होने लगेगा, या स्टॉप करेंगे रिटायर्ड हो जाएगा, या स्टॉप है और उसको एक्शन ऑफ फोर्स करेंगे तो वो मूव होने लगेगा। इट में चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है तो फोर्स में चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट in the same direction add to one another and resultant is in the same direction. फोर्स अगर हम सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं वन अनदर, रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट विल बी ऑन द सेम डायरेक्शन, अदरवाइज इट विल चेंज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फोर्स दो डायरेक्शन में
Now V1 V2 और resultant is nothing but V, it is another direction. लेकिन अगर एक ये सेम डायरेक्शन में है और ये अनदर फोर्स हमने सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया तो रिजल्टेंट विल आल्सो इन द सेम डायरेक्शन. तो generally the force is a physical quantity, a vector quantity having both magnitude as well as direction. So that's why force is a vector quantity, and from this figure you can easily understand how it is the vector quantity, because it has the value, that is magnitude v1 v2, and the direction also. That's why they are called as the vector quantity. So generally displacement, velocity, acceleration, force, moment and momentum, all these are the vector quantity. और फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में तो उसका समेशन इस तरह होगा, वेक्टर वेक्टर समेशन. इट इज नॉट एडिशन, इट इज द वेक्टर सम v1 plus v2, that is nothing but v. So vector sum is different from the addition and subtraction in your mathematics. Don't club addition subtraction with the vector sum. Okay. So, unit vectors are generally denoted by I, J or K. In the it denote the direction of, and this x, y, z denote the magnitude. Now we'll see the Bose notation. Bose, for simplification of the calculation, it given a notation for the graphical representation of the forces. So in this example you can see one force is there of 100 Newton, and in space we are going the letter P and Q in capital letter. Generally in space diagram we are denoting in capital letter P and Q. We are giving name in between the forces there. So letter P and Q are marked on the both side of line of action of force. तो line of action of force के दोनों तरफ हम P और Q ये marking है. A force of 100 Newton is now read as a PQ. तो force क्या हो गया? It is nothing but P and Q. It is denoted in this below figure. So this diagram is called as space diagram, where we are giving the name P and Q. Whereas this diagram, it indicates the force value as well as direction. So force is from P to Q, and this diagram is called as vector diagram, and it is drawn with the scale of 1 centimeter is equal to 25 Newton. So that's why we are representing the force value into graphical method by taking some units. So space diagram, it is a diagram in which number of forces acting on body is drawn in space to a suitable scale. It should be in the scale, suitable scale, and meaning of the and naming the spaces. जैसे कि यहाँ पर आपका फोर्स है, इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये ट्रायंगल बनाते हो, है ना, इस पे कुछ फोर्स है, इस पे कुछ फोर्स है, और यहाँ पर भी आपका फोर्स है. ओके. तो ये जो फोर्सेस है, तो अगर मैं नाम दूँ यहाँ पर ए कैपिटल है, यहाँ पर भी फोर्स है आपका एक्सटर्नल, यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच में, एक्सटर्नल फोर्स के बीच में मैं वैल्यू दूँ बी. फिर आपका यहाँ रिएक्शन आएगा, यहाँ रिएक्शन आएगा और बी, और ये रिएक्शन के बीच में वैल्यू दो सी, ए, और ये रिएक्शन के बीच में वैल्यू दो
इसी तरह इंटरनल फोर्सेस मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर नंबर से डिनोट करूँगा, डेट इज ए। तो दिस इज कॉल्ड एज बोज नोटेशन। ओके। और जो स्पेस में मैंने नंबर दिए हैं इसको क्या बोलते हैं, स्पेस डायग्राम। क्या बोलते हैं, स्पेस डायग्राम। ओके। So that is nothing but the space diagram. And vector diagram, it is diagram in which forces are taken into a suitable scale and drawn parallel to their respective lines of action. The forces drawing in the space diagram by maintaining the same order as it was maintained in the space diagram. तो अगर हम स्पेस डायग्राम बनाते हैं तो दैट शुड बी मेंटेन इन द वेक्टर डायग्राम ऑल्सो, है ना। जैसे कि अगर मैं ये फिगर बनाऊँ, सॉरी, किनारे हम बनाते हैं फिगर, ये फिगर अगर मैं बनाता हूँ, दिस इज द maybe small truss we can say, and there is the external force over the ridge, and this force is 10 kilonewton, and the reaction is 5 kilonewton here and 5 kilonewton here. When I will draw the vector diagram, so if this I will name first the spectrum A, B, and C. So alphabets are generally for the external forces, and for internal force I will write here 1. When we draw the vector diagram, the force A to be a 10 kilonewton, I will come down 10 kilonewton. So I will come down vector diagram, यहाँ से A to B 10 kilonewton. Now B to C, admit it is upward, and that is C, small c, and it is how much, 5 kilonewton. Now A to 1 is the inclined line. So I will draw the inclined line parallel to the, sorry, and then 1 to C parallel to this. So this 1.1. This one is the point 1. So 1 to A and 1 to C, it will give me the scale. I will take the scale in between, how much distance this is, sorry, and measure this distance. If it is 5 centimeter and 1 centimeter 25 Newton, then I will convert into the scale. The 5 into 25 will give the internal force on the this member. So that's why that we can calculate by the graphical method, and it is given by the Bose, and it is called as the Bose notation, and it is divided into the space diagram and the vector diagram to find out the internal forces in a member or forces in a members. So this is the space diagram and vector diagram and the Bose notation. So this is the simplified example. You can see, you can draw at your own and practice as room. I will share these notes and you can practice this construction of how the construction of a space diagram, how the construction of this vector diagram. This is a vector diagram and this is the space diagram. How to construct the space and vector diagram, it is given by the Bose. So today we will stop here. Now there is no time left. So today we have already covered
in our lecture the force, force effects, characteristics of force. Force is a vector quantity, and what is the vector quantity we have seen. Also we have seen the Bose notations for the different force systems, and uh, today we will stop, and in next lecture we will see about the uh, different force systems and the transmissibility of the force. Then unit number 1 will be complete. So we will stop here, and we will continue this principle of transferability in the next lecture.